عبادت ہے، اس کا جو آج کا سرمن ہوگا بے خمیری روٹی کے تعلق سے ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ تو خداوند کے کلام میں سے حوالہ نکالی متی کی انجیل 26 باب اور اس کی 17ویں آیت خداوند کے کلام میں سے۔ اور عید فطر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا، اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ وہ بہت ہی دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جس نے میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔ ابن آدم تو جیسا اس کے حق میں لکھا ہے جاتا ہی ہے، لیکن اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے ابن آدم پکڑوایا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا ہوتا۔ اس کے پکڑوانے والے نے یہودا نے جواب میں کہا، اے ربی کیا میں ہوں؟ اس نے اس سے کہا، تو نے خود کہہ دیا۔ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے۔ ایک ریفرنس خداوند کے کلام سے یوحنا 13 اس کی پہلی آیت۔ خداوند کے کلام لکھا ہے، عید فسح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو آپ نے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پوچھنا شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اسے کہا، اے خداوند کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پترس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی دھونے نہ پائے گا۔ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دوں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ شمعون پترس نے اسے کہا، اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ یسوع نے اس سے کہا، جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ پکڑوانے والے کو جانتا تھا اس لیے اس نے کہا کہ تم سب پاک نہیں ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ، سب بیٹھ جائیے۔ بڑی خوبصورت باتیں آج خدا کے کلام میں سے کرنے کو۔ یہ جو عبادت ہے آج کی، پوری دنیا کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آخری فسح کا کھانا یسوع مسیح نے کھایا اور ساتھ ہی اپنی فسح کو اس نے سٹارٹ کیا، یعنی شاعر بانی کو سٹارٹ کیا۔ تو یہاں پر خدا کے کلام کے اندر جو حوالے پڑے گئے اس کے تعلق سے بتانا چاہوں گا، اگر کوئی فسح کو سمجھتا ہے تو تبھی وہ جو ہے وہ اگر شاعر بانی کو سمجھنا چاہتا ہے تو فسح کی عبادت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر یہ فسح کی عبادت منائی جاتی ہے، اور یہ فسح کی جو عبادت تھی یہ بھائیوں اسرائیل مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں بنی اسرائیل، کیونکہ وہ مصر سے جب نکلنے لگے تو خدا نے کہا اس عید کو منانا اور اپنے بچوں کو بھی
اس کے تعلق سے سکھانا. تو یہ فسح کی عبادت جو تھی وہ ہر گھر کے اندر منائی جاتی تھی. اور جب مصر سے قوم بنی اسرائیل نے موو کرنا تھا، وہاں سے نکلنا تھا، اسے پاشکا بھی کہتے ہیں. اور اسے جو ہے وہ گریک کے اندر پاشکا کہتے ہیں، پاشکا کی عید. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عید فسح. اور یسوع مسیح نے عید فسح کو بھی منایا اور پھر عید اپنی شہربانی کو بھی سٹارٹ کیا. تو خداوند کے کلام میں سے یہاں پر خداوند کے کلام میں دو لفظ ملتے ہیں. ایک تو لارڈ فسح تھی اور ایک لارڈ سپر. لارڈ فسح جو ہوتی تھی یہ مصر کی عید ہے، اور لارڈ سپر جو ہے یہ شہربانی ہے جسے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، جسے ہم لیتے ہیں یسوع کا لہو. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ فسح کی جو بنی اسرائیل عید مناتے تھے اس کے اندر ایک برہ لیتے تھے یا بکری کا بچہ لیا جاتا تھا. اور میں نے بتایا اگر شہربانی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے فسح کا جو برہ لیا جاتا تھا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور خداوند کے کلام میں خدا نے کہا تھا یہ جب 10 آفتیں مصر پر نازل ہوئی اس میں سے ایک آفت تھی پلوٹوں کے پلوٹے مارے جاتے تھے. یعنی کہ ایک فرشتہ آتا اور اس دور کے اندر لکھا ہے کہ فرشتہ آئے گا اور پلوٹوں کو مارتا چلا جائے گا، لیکن جن چوکٹوں کے اوپر برے کا لہو لگا ہوگا وہ جو ان کے پلوٹے بچائے جائیں گے، یعنی چھوڑ دیا جائے گا، وہ چھوڑتا چلا جائے گا فرشتہ. تو خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند کے کلام میں لیکن اس وقت جب یہ فسح منائی گئی تو خدا نے کہا ایک برہ لینا ہے. میں نے بتایا یا بکری کا بچہ یا برہ، اور اس کو کیا کرنا ہے؟ روسٹڈ لینا ہے، یعنی روسٹ کرنا ہے. اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، جیسے وہ پورا کا پورا ہے اس کو باقاعدہ اسی طرح روسٹ کرنا ہے. اور نفی کے مطابق لینا ہے، یعنی جتنے لوگ گھر کے اتنے، اگر کم ہے تو ساتھ والے گھر کو بلا لیتے تھے. یعنی خدا کا آرڈر تھا اس فضا کو منانا ہے اور ہر سال منانا ہے. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو بھی سکھاتے تھے کہ اس فسح کے اندر شامل ہونا. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب فسح انہوں نے کھانی تھی تو آرڈر تھا کہ اس برہ کی ہڈی تک نہ توڑی جائے. اور یسوع مسیح جو ہمارا برہ ہے، لیکن ازل سے ذبح کیا برہ ہے، لیکن اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی. ہاللیلویا. کراس کے اوپر ہڈیاں توڑی جاتی تھی تاکہ موت جو تھی ڈیتھ وقوع کے اندر آئے. جب کوئی مرتا نہیں تھا تو پھر اس کی ہڈیوں کو توڑا جاتا تاکہ ڈیتھ ہو جائے. مگر خداوند کے کلام لکھا ہے خداوند نے پوری عدالت، پوری ڈیتھ کو، پوری موت کو میری اور آپ کی خاطر اس نے اٹھایا وہاں پر. لیکن اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی. یعنی یسوع کے اوپر جو موت آئی ہے وہ میری اور آپ کی موت پوری کی پوری اس نے پورا کا پورا دکھ سہا ہے. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے جیسے فسح کے برہ کی ہڈی نہیں توڑی جاتی تھی اور پھر اسے روسٹڈ یعنی بھون کر بھونا جاتا تھا، اور پھر اسے لکھا ہے بے خمیری روٹی کے ساتھ کھایا جاتا تھا. لکھا تھا کمرے بندی ہو، جوتیاں پاؤں کے اندر پہنی ہو. اس فسح کو منانا یعنی اس کو جلدی جلدی کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے. چلتے چلتے، بیٹھ کے نہیں کھانا جیسے ٹیبل کے اوپر کھانا کھاتے. نو، یہ آرڈر تھا خدا کی طرف، اسے چلتے چلتے کھانا. میں نے بتایا بنی اسرائیل کے لوگ گھروں کے اندر یہ عید فسح مناتے تھے. اور لکھا ہے جب مصر سے نکلنا تھا تو خدا نے آرڈر کیا تھا کہ وہ برہ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور برہ کو روسٹ کرنا ہے. اور لکھا ہے کہ اس کو بے خمیری روٹی کے ساتھ، یعنی روٹی کے اندر خمیر نہ ہو. یعنی خمیر جہاں پر ہوتا ہے اس کا مطلب گناہ، سن، گناہ والی زندگی نہ ہو. یعنی کوئی ناپاک شخص اس فسح کو منانے نہ پائے. ناپاک شخص یعنی گھر کے اندر کسی بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر جو تھا وہ خمیر نہیں ہوتا تھا، بے خمیری روٹی کھاتے تھے اس عید کے اندر. مگر اس دور کے اندر خمیری جو تو روٹی تھی، خمیر والی روٹی بہت کھائی جاتی تھی، مگر آج بھی دنیا کے اندر کھائی جاتی ہے. خمیر کا مطلب ہے کہ گناہ والی لائف. خمیر کا مطلب ہے کہ ملاوٹ والی زندگی، جن زندگیوں کے اندر گناہ ہوتا ہے. تو خدا نے آرڈر کیا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی بندہ اس میں شریک نہ ہو، ورنہ وہ قوم سے کاٹ دیا جائے، یعنی قوم سے نکال دیا جائے. بنی اسرائیل سے نکال دیے جاتے تھے. اور اگر کوئی سفر پہ ہے وہ بھی اس طرح طریقے سے آرڈر تھا کہ وہ سفر میں بھی اس فسح کو منائے. کوئی کسی جگہ پر گیا ہوا ہے باہر کے ملک کے اندر تو اس عید کو سیلیبریٹ کرنا ہے. میں نے بتایا یہ عبادت اس قدر ضروری ہے کہ اگر کوئی ہزاروں سال عبادت کر لے، ایک دن عبادت کر لے، خدا نے اتنی اس کو اہمیت دی ہے اس عبادت کو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت بھائیوں آخری فسح یعنی اسمان پر یسوع مسیح نے جانے سے پہلے اس فسح کو منایا، سیلیبریٹ کیا. اور میں اور آپ خدا کی حضوری میں بیٹھ کر اس کی عبادت نہ کر سکے، اس عید کو منا نہ سکے، پاک شراکت کو منا نہ سکے، سیلیبریٹ نہ کر سکے،
रफाकत ना रख सके, शराकत ना रख सके। तो मैंने बताया वो जो फसा का बर्रा होता था वो लिखा है पूरा का पूरा रोस्ट किया जाता था और फिर उसे बेखमीरी रोटी के साथ गुनाह के बगैर जो था वो सेलिब्रेट किया जाता था। मैं कहता हूं इसको उठाकर पीछे। तो खुदावंद के कलाम लिखा है ये फसा के गोश्त को लिखा है नफी के मुताबिक, यानी उतने लोग हों जितना बर्रा है, अगर उतने नहीं है तो फिर हमसायों को बुला लिया जाता था, दूसरे हमसायों को। फिर लिखा है वो बर्रा जो होता था लिखा है उसको जब खाना है तो पाँव में जूतियां पहनी हो, कमरे कसी हो, लिबास कसा हो, और लिखा है जल्दी जल्दी इसको खाना है। यानी वो फसा अगर लिखा है कोई नापाक शख्स, नामख्तून शख्स इसमें शामिल ना होने पाए, यानी कोई गुनाह की हालत में, कोई ढीठ की पन की हालत में, कोई लालच की हालत में, गुनाह की हालत में इस फसा के अंदर शामिल ना हो, वरना वो कौम से क्या होगा, काट दिया जाएगा। तो यीशु मसीह हमारा फसा का बर्रा, कहने का मकसद है वो फसा का बर्रा। मगर बनी इसराइल ने इस फसा को सिर्फ उस दिन बनाया और लिखा है खून उसका लेकर अपने घरों की चौखटों के ऊपर लगाया, और लिखा है मौत का फरिश्ता आया और जिन चौखटों पर खून लगा हुआ था बर्रे का उन घरों को छोड़ता चला गया। यानी इसको पास ओवर कहते हैं, यानी छोड़ना, इस ईद को मनाना, ईद फसा, छोड़ता चला गया, प्लेटों को छोड़ता चला गया। अब देखिए कि आज दुनिया के अंदर जिन घरों के अंदर, जिन जिंदगियों के अंदर यीशु का बर्रे का लहू लगा हुआ है, वो घराने भैया शैतान के हाथ नहीं चल सकते। हालेलुया, इस बात की जरूरत है। हालेलुया, वो तो भैया बर्रे का खून लगा देते, मेरी और आपकी जिंदगी पर तो यीशु का खून लगा हुआ है। लिहाजा मेरे और आपके घर के ऊपर शैतान कब्जा नहीं कर सकता, मौत कब्जा नहीं कर सकती, बीमारी कब्जा नहीं कर सकती, आ सकती वक्ती तौर पर, मगर क्योंकि वो यीशु का लहू हम पर लगा हुआ है, हमारी जिंदगियों पर, हमारे घरानों पर, हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर भाई यीशु का लहू लगा हुआ है। हालेलुया, वो तो बर्रे का लहू लगाते थे मगर हमने तो यीशु का खून ही लगा दिया। आमीन। लिहाजा ये फसा लिखा हर घर को बनाने की जरूरत थी, हर घर को ऑर्डर था कि ये फसा मनाए, मगर खुदावंद ने क्या बनी इसराइल ने वो फसा भाइयों मिस्र वाली ईद मनाई और उसके बाद आगे जाकर उन्हें फसा मनाना छोड़ दिया। मगर लिखा है आगे जाकर लिखा है फिर यूसिया बादशाह लिखा है फिर हिजकिय्याह ने भी बात ये फसा मनाई आगे जाकर, फिर लिखा है यूसिया बादशाह ने तो बहुत मनाई, वो हिजकिय्याह बादशाह से भी ज्यादा मनाई। लिखा है उसने जब ये फसा बनाई उसने ये 7 दिन की ईद होती थी मगर ये उसने 14 दिन मनाई। उससे पहले ईद मनाने, फसा मनाने से पहले उसने क्या किया सुनिए, फसा मनाने से पहले उसने कौम बनी इसराइल से बुत परस्ती को खत्म किया, गुनाह को खत्म किया और लालच को खत्म किया। हर किस्म के बुत गुनाह जो उन्होंने बना रखे थे, बुत बना रखे थे जिनकी वर्शिप करते थे, मूर्तियों की परस्तिश की जाती थी, और फिर लिखा है कि उन्होंने दरख्तों की परस्तिश की, फिर पानियों की परस्तिश की जाती थी, सितारों की परस्तिश की जाती थी। लिखा है ये जो बादशाह था इसने लिखा उन तमाम बुरे कामों को कौम से दूर किया, उनको खत्म किया, और तब लिखा है उसने जाकर बहुत बड़ी शादमानी की, और फिर क्या उसने ईद फसा को वहां पर सेलिब्रेट किया। 7 दिन की नहीं, फिर 14 दिन उसने खुशी मनाई, यानी खूब वर्शिप की, खूब इबादत की और खुदावंद के नाम को जलाल दिया। और फिर ये देखिए ये बादशाह जो था इसने बहुत इस फसा को मनाया। फिर लिखे आगे आकर उन्होंने फसा मनाना छोड़ दी। फिर लिखे यीशु मसीह के दौर के अंदर यीशु मसीह ने क्या किया, इस फसा का दिन आया तो शिगिर्दों ने कहा यीशु तू कहां चाहता है कि हम इस फसा को मनाए? तो यीशु ने कहा फलां जगह पर जाना, वहां तुम्हें एक शख्स मिलेगा जो मटका उठाए हुए था। अब देखिए खुदा ने अपने लोगों को तैयार कर रखा है इलाही तौर पर, मौजज़ाना तौर पर, कोई उनको पहले नहीं बताया गया उस बंदे को। यीशु ने कहा फलां जगह पर जाना, तुम्हें रास्ते में एक बंदा मिलेगा, शख्स मिलेगा, उसने सर पे मटका उठाया होगा, उससे कहना कि उस्ताद ने फसा मनानी है। तो कहां पे बनाया जाए? अब देखिए वहां पर बर्रा भी उसने तैयार कर रखा है, वहां पर पानी भी पांव धोने के लिए वो उसने सर पे उठाया। हालेलुया, मौजज़ाना तौर पर, जैसे यीशु मसीह ने कहा खुदावंद के कलाम में क्या कि जब हमने जो इत्वार की जो पौम चढ़ने की सलवत, यीशु मसीह ने कहा, अरे यीशु मसीह कितनी लाइफ सादा थी उसकी। लेकिन लोमड़ियों के फट, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने के लिए चल रही सादा लाइफ बसर की। खुदावंद के कलाम ने क्या बिल्कुल सादा जिंदगी बसर की, हालांकि कायनात का बनाने वाला हर चीज उसकी है, मगर अपने आप को मेरी और आपकी खातिर खाली कर दिया, इंसान बन गया मेरी और आपकी खातिर। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आप देखिए कि पैसे नहीं है, टैक्स अदा करना है। लिखा है मछली
पतरस से कहा गया, यानी शिगिर से कहा गया जा क्या कर, बांसुरी लगा यानी कुंडी लगा और वहां पर मछली पकड़ेगा, उससे खोलेगा जब उसका पेट, तो तुझे पैसे मिलेंगे वहां। हालेलुया। और फिर अपना भी टैक्स अदा करता है, मेरा भी टैक्स करता है। ये मौजूदा तौर पर है खुदा करता। और यहाँ पर लिखा है जाकर, जब यीशु मसीह ने पॉम संडे की सर्विस वहां पर अपने आप को बादशाह बनाना था, तो कहा जाओ फला जगह पर जाना, वहां गदी बंधी हुई होगी, उसे खोल कर लेना। अगर कोई पूछे तो कहना उस्ताद को इसकी जरूरत है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसा ही हुआ। हालेलुया। ये मौजूदा तौर पर लोग तैयार थे। और लिखा है यहाँ पर जब यीशु आखिरी फसा खाने को है, तो शिगिर्दों ने कहा तू कहाँ चाहता है कि ये आखिरी फसा बनाए? फिर आके यीशु ने आकर बनाए। और खुदावंद के कलाम लिखा है शिगिर्दों को क्या कहा कि फला जगह पर जाना, वहां से एक बंदा तुम्हें सर पे मटका उठाए हुए पानी का मिलेगा, उससे कहना उस्ताद फसा खाना चाहता है, तो वो तुम्हें ले जाएगा। और लिखा है वो ऐसा ही हुआ। वो शिगिर्द भागे गए वहां पर। जहां वहां पहुंचे तो एक शख्स आ रहा था मटका सर पे उठाया हुआ पानी का, उसे कहने लगे उस्ताद ने फसा खानी है, तो हम तैयारी करना चाहते हैं, तो वो तुम्हें ले जाएगा। लिखा वो फौरन उन भाइयों को कहाँ ले गया? लिखा है एक बाला खाना भी ले गया, वहां पर भरा भी तैयार है, आप देखिए फसा का, वहां पर पानी भी पड़ा हुआ है। और खुदावंद के कलाम लिखा वो तैयारी करने लगे। और लिखा यीशु मसीह और शिगिर्दों के साथ वहां पर पहुंच गया। देखिए कितनी मौजूदा तौर पर यीशु मसीह पहुंचा। और लिखा वहां पर उनके साथ जब फसा खाने को है, ये मिस्र वाली ईद का फसा भर्रा भी वहां पर मौजूद है। और लिखा है कि वहां पर जब फसा खा रहे हैं, तो साथ ही खुदावंद के कलाम लिखा यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी ली। हालेलुया। यहाँ पर रोटी पड़ी होगी, मुझे पकड़ा दे बच्चा, ये मुझे जरा पकड़ा है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है जब वो फसा खा रहे थे, थैंक यू तेरा शुक्र, हालेलुया, थैंक यू जी। ग्लास एक दे देंगे मुझे, सॉरी ग्लास चलिए, शुक्रिया का मुश्किल काम नहीं कर देते। चलो शुक्रिया बेटा, ये पकड़ लो। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने रोटी ली। सबसे पहले क्या ली? रोटी लेकर लिखा अपने शिगिर्दों को तोड़ के दी। और हालांकि दूसरी वो फसा को, ईद फसा को मना रहे, और साथ ही साथ फसा को खत्म करके फिर यीशु मसीह ने अपनी फसा, क्योंकि उस फसा के अंदर बर्रा ज़िबा किया जाता था, बर्रा कुर्बान होता था। और लिखा अपना ही बदन, ये रोटी दी और कहा ये मेरा बदन है जो नए अहद में है तुम्हारे गुनाहों के लिए। हालेलुया। लिखा है क्राइस्ट ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़कर उनको दी कि ये खाओ, ये मेरा बदन है। और फिर उसने प्याला लेकर प्याला लिया और प्याला कहा ये मेरा खून है, नए अहद का खून, इसे पियो। हालेलुया। लिहाजा कहने का मकसद है कि यीशु मसीह ने वो फसा की जो ईद थी उसे खत्म किया और फिर अपने फसा को स्टार्ट किया। और अपना फसा ये था कि उसने रोटी ली, यानी अपना बदन खाने को दिया। और जो फसा को खाते हैं, जो यानी कि रोटी को खाते हैं, शीरे को लेते हैं, इसका मतलब है वो मसीह के लहू को लेते हैं, मसीह के बदन में शरीक है। और लिखा इसके अंदर कोई नापाक शख्स, इसमें कोई बेखमीरी रोटी के साथ ना आए, यानी खमीर वाली रोटी ना हो, बेखमीर होकर रोटी के साथ आना, यानी जिसके अंदर खमीर ना हो। खमीर का मतलब गुनाह ना हो। पाकीज़गी की हालत में इसमें आना है, नापाकी की हालत में कोई शख्स इसमें शरीक ना हो। ये भाइयों यीशु का लहू है और फिर मसीह का ये क्या है? बदन है, इसमें शरीक होना है। भाइयों जब वो फसा का बना लिया जाता तो लिखा है बेखमीरी रोटी के साथ, यानी उसके अंदर खमीर ना हो। खमीर का मतलब है गुनाह वाली जिंदगी ना हो, ना मखतून शख्स ना उसमें शामिल हो। इसी तरह जब ये फसा है, यानी ये शीरा है, रोटी को लेना है, मसीह के बदन को लेना है, मसीह के लहू को लेना है, तो भाइयों हमें क्या करना है? बेखमीरी रोटी के साथ, यानी खमीर उसके अंदर ना हो, सिन ना हो, गुनाह ना हो, कोई नापाकी की हालत में यहाँ पर आकर इस शीरे के अंदर शरीक ना हो। वरना भाइयों, वरना को इसलिए लिखा तुम में बथेरे, कमजोर, बीमार, बेशुमार सो भी गए। अगर हम अपने आप को टेस्ट करते, जांचते तो सजा ना पाते। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो भाइयों गुनाह की हालत में, ढीठपन की हालत में, नापाकी की हालत में इसे लेते हैं, फिर गुनाह के अंदर होते हैं, फिर यही वजह बीमारियों के अंदर चले जाते हैं, फिर
मुश्किलात के अंदर चले जाते हैं, तकलीफों के अंदर चले जाते हैं, आजमाइशों में चले जाते हैं. लिखा है यहूदा इस्करियोती जो था ना, उसको भी ये रोटी यीशु ने दी. फिर लिखा है खुदा ने, यीशु मसीह ने खुद नमाला तोड़कर उसे दिया. जब किसी को ये नमाला तोड़कर दिया जाता था ना, उसके मुंह में डाला जाता था. इसका मतलब बड़ी मोहब्बत इससे. यीशु मसीह जानता है कि ये मुझे पकड़वाएगा, मगर यीशु की मोहब्बत देखिए कि दुश्मन से मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल होता है. जिसने आपको दुख दिया हो, जिसने आपको सताया हो, जिसने आपको गालियां दी हो, जिसने आपको तमाचे मारे हो, जो आपको पकड़वाने वाला हो, जो आपके खिलाफ हो, कितना मुश्किल होता है उससे मोहब्बत करें. मगर यीशु ने करके दिखाई है. हालेलुया. आइए इस बात की जरूरत है. लिहाजा मुझे आपको भी दुश्मन से मोहब्बत करनी है. दुश्मन से क्या करनी है? मोहब्बत करनी है. मोहब्बत करेंगे तो फिर ही क्राइस्ट के लहू को भाइयों को माल ना करेंगे. तो कोई नापाकी की हालत में यहाँ पर ना आया हो ये फसा की ईद मनाने के लिए, इस शायरबानी के शरीक होने के लिए. भाइयों मैंने बताया वो फसा की जो ईद थी उसके अंदर कोई जो होता था वो कोई खमीर वाला नहीं होता था शख्स. तो आज अगर कोई खमीर जिसकी जिंदगी में हो, गुनाह किसी की जिंदगी में हो, और वो आज की ईद को मनाए, इस शायरबानी के अंदर शरीक हो, तो भाइयों वो तो हलाकत के अंदर चला जाएगा. इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? कश्ती में खुदावंद के कलाम में यीशु मसीह शहीदों के साथ कश्ती में बैठा होगा. सुनिए छोटी सी बात और खुदावंद के कलाम ने क्या कश्ती में बैठ कर यीशु मसीह ने कहा यहूदियों के खमीर से दूर रहना, यानी फकीयों के खमीर से, फरीसियों के खमीर से, सदूकियों के खमीर से क्या करना, और लिखा है हेरोदीस के खमीर से दूर रहना. यानी इसका मतलब गुनाह वाली उनकी जिंदगी है. सदूकी जो होते हैं ना, फरीसी जो होते हैं, वो भाइयों दो दिले शख्स है. यानी वो खुदा की इबादत भी करते हैं और साथ साथ दुनियादारी को भी रखते हैं. और सदूकी जो है, इसलिए कहा कि उनके खमीर से बचे रहना, यानी ऐसे गुनाह से बचे रहना. डबल माइंडेड ना हो लोग, यानी दोनों तरफ चलने वाले लोग ना हो, खुदा के साथ चलने वाले लोग हो, यानी उनकी जिंदगी में यानी खमीर ना हो. लिहाजा लिखा है सदूकी जो थे वो भी लिखा सदूकियों के खमीर से बचना. यीशु मसीह ने कहा खमीर क्या है सदूकियों का? यानी सदूकी लोग जो थे वो यहोवा खुदा को मानते थे, मगर क़यामत पर उनका ईमान नहीं था. क़यामत के ऊपर उनका, वो क़यामत को नहीं मानते थे. तो लिखा है क़यामत को नहीं मानते, तो फिर इसका मतलब है तो वो तो मसीह का इनकार कर रहे हैं, खुदा का इनकार करके कोई अदालत नहीं होगी. दुनिया के अंदर ऐशो-इशरत करो, गुनाह करो, नापाकी के अंदर जिंदगी बसर करो, जब अदालत ही नहीं होनी, तो क़यामत ही नहीं होनी, तो क्या फायदा? इसलिए क्या खाओ पियो मौजा उड़ाओ. तो खुदावंद के कलाम में लिखा है सदूकी जो थे वो उनकी तालीम थी कि वो यहोवा खुदा को मानते थे, मगर उनके अंदर ये खमीर पाया जाता था, गुनाह पाया जाता था, वो क़यामत को नहीं मानते थे. और सदूकी फिर जो है वो डबल माइंडेड लोग थे. और खुदावंद के कलाम में लिखा है हेरोदीस के खमीर से बचना. हेरोदीस का खमीर क्या था? यानी बदकारी वाली लाइफ ना हो, क्योंकि हेरोदीस जो था बदकार था. बदकार से मुराद उसने अपने भाई की बीवी को रखा हुआ था घर के अंदर. इसलिए तो यूहन्ना ने कहा था कि तेरी जिंदगी में ये गुनाह है, तूने अपने भाई की बीवी को अपने पास रखा हुआ है. तो इसी वजह से लिखा है जो हेरोदीस जो था वो मानता था ये नबी, मगर अंदर खाते उसे कत्ल करवाना चाहता था, मार देना चाहता था. इसलिए तो उसने उसे कत्ल करवा दिया. इसलिए यीशु मसीह के भी खिलाफ था. हालांकि यीशु मसीह की बड़ी तारीफ करता था कि ये खुदा भाई बड़े काम करता है, मगर अंदर हेरोदीस क्या करता था? खुदा के लोगों के खिलाफ, मसीह के खिलाफ. इसलिए तो वो बहाने बनाता था, ग्रुपों की शक्ल में ये लोग थे, और फिर आकर यीशु मसीह को आजमाते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी में क्या था? गुनाह वाली जिंदगी थी ना, खमीर पाया जाता था. और यीशु मसीह को क्या टेस्ट करते थे, आजमाते रहते थे, क्या सवाल करते रहते थे, किसी तरीके से पकड़ा जाए, किसी तरीके से क्या वो हमारी बातों के अंदर आ जाए. और खुदावंद के कलाम में लिखा है एक दफा तो यीशु मसीह को पकड़कर, उनकी जिंदगी में गुनाह थी, चलाकी थी ना, मसीह को पकड़ना चाहते थे, तो खमीर पाया जाता था. कहने लगे कि बड़ा ग्रुप, बहुत बड़ी गैदरिंग थी, क्रोध थी, यानी बहुत बड़ा रश था, और कहने लगे कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं देना. अब ये चलाकी उनके अंदर खमीर है, गुनाह है ना. मसीह को फंसाना चाहते हैं, कत्ल करवाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं. तो कहने लगे, यीशु मसीह से सवाल करने लगे कि कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं देना. अब यीशु मसीह ने उनकी चलाकी मालूम की और क्या कहा हमसे? उसके मेरे पास एक सिक्का लाओ. एक बंदे ने लाकर सिक्का दिया. खुदा के घर के अंदर, हैकल के अंदर जो सिक्का आता था उस पर तस्वीर नहीं बनी होती थी उससे. इसलिए तो वहां पर लिखा है बैठे हुए थे लोग, वहां पे मनी ट्रांसफर करने वाले लोग बैठे थे, मनी चेंजर. वहां पर सोने का, गोल्ड का सिक्का जाता था खुदा के, यानी वो पैसे देकर
सोने का सिक्का लेते थे, उस पर तस्वीर बनी होती थी, वो खुदा की हैकल में जाता था। और यीशु मसीह ने कहा जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। आमीन। यानी जो कैसर, जिसपे तस्वीर कैसर की है, वो कैसर को दो, और जो सोने का सिक्का खुदा का है वो खुदा को दो। आमीन। यानी इससे मुराद क्या है? जो खुदा का है खुदा को देना, जो कैसर का है कैसर को देना। इसका मतलब जो खुदा का हिस्सा बनता है, आज भी दुनिया के अंदर बेशुमार सदूकी यानी कैसर वाला जो खमीर पाया जाता है, वो क्या करते हैं? खुदा का हिस्सा भी नहीं देते। इसी तो लिखा खुदा का जो है खुदा को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। वो सारा कैसर को ही दे जा रहे हैं, खुदा का हिस्सा भी कैसर को दे रहे हैं। यानी जब खुदा की हुजूरी में नहीं लाएंगे तो इसका मतलब है वो भाइयों क्या कर रहे हैं? वो कैसर को, खुदा का हिस्सा भी कैसर को दे रहे हैं। लिहाजा वो सजा पाते हैं, बीमारियों में रहते हैं। लिहाजा खुदावंद के कलाम में लिखा है कि सदूकियों के खमीर से यीशु मसीह का बचना है, और फिर लिखा है कि हेरोदीस के खमीर से बचना है, बदकारी का खमीर ना हो, गुनाह वाली जिंदगी ना हो। कोई शख्स गुनाह की हालत में भाई इसमें शरीक ना हो। इसी लिखा तुम्हें बथेरे कमजोर बीमार है, बथेरे सो भी गए हैं, मर भी गए हैं, अब देखिए डेथ भी हो जाती है, नापाकी की हालत में कोई इसमें शरीक हो। खुदा ने मना किया था नामख्तून शख्स इसमें शरीक ना हो इस ईद के अंदर। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस फसा को, जो मिस्र वाली ईद थी, उसे खत्म किया। मिस्र वाली ईद मैंने बताया फसा का मतलब था खाने का, कि वो क्या कर रहे थे? मिस्र को छोड़ने के लिए निकले। पास ओवर, यानी ये पास ओवर ईद इंग्लिश में कहते हैं। पास ओवर का मतलब है मिस्र को छोड़ना, ईद का मतलब है मनाना, मिस्र को छोड़ना, जूतियां पहनी हो, कमरे कसी हो। उन्होंने मिस्र को छोड़ना था तो फसा को मनाया, फसा खाकर उन्होंने वहां से मूव किया। इस तरह आज मुझे और आपको दुनिया को छोड़ना है तो भाइयों ये शायरबानी को मनाना है। दुनिया में हम दुनिया से मूव करके हमने आसमानों पर जाना है। आमीन। हमने दुनिया को छोड़ना है तो ये फसा करनी है, यानी मसीह वाली फसा, यानी इस शीरे और रोटी के अंदर शामिल होना है। तभी तो हम जोर पा सकेंगे। आमीन। तभी तो हम कुव्वत पा सकेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां पर भाइयों, यहां पर लिखा है कि ये फसा शायरबानी यीशु मसीह ने जब शुरू की तो आप देखिए कि वहां पर उनकी जिंदगी में मसीह ने दुख सहना था आगे, और लिखा है दुख सहने से पहले यीशु मसीह ने फसा खाई अपने शहीदों के साथ। फिर आगे जाकर देखते हैं बहुत सारे शहीदों ने यह फसा मनाई। खुदावंद के कलाम में लिखा है एक जगह पर पतरस मनादी कर रहा था, वहां पर शहीदों को उनको पतरस को पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। लिखा है जेल खाना के अंदर था, तो लिखा है उसे बेड़ियां तोड़ दी। एक फरिश्ता आया वहां पर, और फरिश्ते ने आकर बेड़ियां तोड़ी, उसे आजाद किया। उसको लिखा है जेल खाने से ऊपर एक लिखा रस्सी के साथ यानी नीचे भेज दिया, और लिखा उसे आजाद करवा दिया बेड़ियां तोड़ के। पतरस सब गया एक घर के अंदर, तो फरिश्ता उसके साथ था। लिखा फरिश्ते ने जाकर उस घर के पास से छोड़ दिया, वही जाकर वहां पर कलाम सुना। तो लिखा है वो फसा का दिन था। लिखा शहीद वहां पर कटे थे, और लिखा वहां पर फसा के लिए तैयार थे लोग। और वहां पर लिखा जाकर पतरस ने क्या किया? जाकर कलाम सुनाने के लिए फरिश्ते ने उसे आजाद किया। जाकर कलाम सुना, वहां पर फसा की तालीम दे, वहां पर पाक शाकत होने को है, पाक शाकत की तालीम दे। लोग मसीह लोग जो थे, बनी इस्राएल के लोग जो थे, वो हैकल के अंदर दुआ करते थे, मगर ईमानदार जो लोग थे, मसीह नए जो मसीह बने थे, मसीह पर ईमान रखते थे, वो हैकल में जाते थे मगर बरामदों के अंदर दुआ करते थे। मगर ये पाक शाकत जो होती थी वो घरों के अंदर की जाती थी। कहां पर की जाती थी? घरों के अंदर बनाते थे मसीह लोग, वहां पर हैकल के अंदर नहीं बनाई जाती थी, ना लौ था वहां पर। वहां तो इजराइल के लोग थे, मसीह तो वो कहलाते हैं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, मगर वो भी हैकल में जाकर हर घंटे यानी 24 घंटे वहां पर बरामदों में जाकर क्या करते थे? मसीह ईमानदार लोग बैठकर दुआ करते थे। और शायरबानी जब करते थे तो घरों में ये मनाते थे, घरों के अंदर ये सेलिब्रेशन होती थी, और बेशुमार लोग साथ वो खाना भी खाते थे। तो फिर पतरस एक जगह पर आया, क्योंकि उसने आकर अपना खाना ले आते थे, वहां पर शायरबानी मनाने के लिए आए होते थे घरों में, और साथ ही अपना खाना वहां पर खोलते थे, वहां पर सेलिब्रेट करते, खाना खाते थे। तो जब पौलुस रसूल उन कलीसियों में गया तो पौलुस ने कहा ये क्या तुम कर रहे हो? उन्होंने मना किया पौलुस रसूल ने कि कोई तो अच्छा खाना ले आता है, बड़ा अच्छा खाना, और कुछ खाना जरा नाकस होता है खाना, कुछ बड़ा बड़ा गोश्त ले आता है, कुछ सब्जी ले आते, कुछ दाल ले आते। तो खुदा का बंदा पौलुस वहां पर उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? खाना खाना है तो फिर अपने घरों में खाओ, ये तो उसी का बदन, हम यहाँ पर बदन में शरीक होने को, उसके लहू में शरीक होने को, तो ये क्या बनाया हुआ आपने? ये खुदावंद के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल ने कलीसियों को मना कर दिया। वे खाना खाने के लिए आपके घर मौजूद है,
मगर लिखा है ये शराकत जो है, पाक शराकत जो है, वो तो घरों में बनाते थे, खाते थे, मगर मैं और आप खुदा के घर में बनाते हैं। हालेलुया। ये खुदा के घर के अंदर अब सेलिब्रेट होती है। खुदा का मसीह का बदन हम जब लेते हैं, फिर उसके पाक लहू में शामिल होते हैं, तो अब ये कलीसियों के अंदर शामिल होना है। तो लिहाजा जब कलीसिया में शामिल है तो हमें क्या करना है, इसमें शरीक होना है। मैंने बताया बेखमीरी रोटी के साथ, यानी कोई खमीर ना हो, कोई गुनाह की हालत में ना हो, कोई ढीठपन की हालत में ना हो, कोई लालच की हालत में यहाँ पर ना आया हो, कोई नापाकी की हालत में यहाँ पर आया ना हो, कोई बदकार शख्स इसमें ना आया हो। और आखिरी बात सुनिए, खुदावंद के कलाम ने क्या पौलुस रसूल ने कलीसिया से एक शख्स को निकाल भी दिया, आउट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर खमीर पाया जाता था, नापाकी की हालत में वो बात करता था, गीत भी गाने आ जाता था, कलाम भी सुनने के लिए आ जाता था, कलाम भी सुनाने के लिए आ जाता था। नापाक शख्स, बदकार शख्स, उसने अपने भाई की, अपने बाप की बीवी को रखा हुआ था और साथ कलीसिया में आकर इबादत भी कर रहा है, पाक शराकत में भी शामिल है। लेकिन पौलुस रसूल ने लेकिन उस खमीर से उस बंदे को कलीसिया से आउट किया। अब देखिए बड़ी दिलेरी होनी चाहिए। पौलुस ने उस कलीसिया से लिखा उस बंदे को आउट किया और लिखा शैतान के हवाले कर दिया, और लिखा वो बीमारी की हालत के अंदर चला गया, गुनाह की हालत में चला गया। कहने का मकसद है कि एक शख्स जो है भाइयों कोई बदकारी की हालत में, नापाकी की हालत में इस खुदा की हुजूरी में आए, या इस ईद को सेलिब्रेट करने के लिए मसीह के लहू को और उसके बदन में शरीक होने के लिए आए, और नापाकी की हालत, खमीर की हालत में आए। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखे उस शख्स को क्या किया गया, वहां से निकाल दिया गया कलीसिया से। आज अगर किसी को कहे भाई नापाकी की हालत में नहीं आना, वो तो खादम के खिलाफ ही हो जाएगा ना बंदा, वो और लोगों ने भी खिलाफ करके लाइएगा, कोई लो जी कि कड़ा पादरी है, मुझे चर्च से निकाल दिया। तो बेशुमार दुनिया के अंदर बैठे होते खमीर के साथ गुनाह की हालत में आ जाते हैं। तो हमें भाइयों खमीर को निकाल कर बेखमीरी रोटी के साथ, यानी पाकीज़गी की हालत में, रासबाजी की हालत में इस ईद को मनाना है। और खुदावंद की हुजूरी में आया तो इसमें शामिल होना है, तो पाकीज़गी की हालत में और अब पाकीज़गी की हालत में आकर खुदा के नाम को चला दें। तो खुदावंद के कलाम लिखा है जब यीशु मसीह ने अपना बदन दे दिया, लिखा है खाने को दिया, लहू पीने को दे दिया, तो उससे पहले क्या किया, उसके बाद उनकी आपस में जो है झगड़ा होना शुरू हो गया। क्या झगड़ा होना शुरू हो गया, वो कहने लगे मैं बड़ा हूं, फलां बंदा कहने लगा मैं बड़ा हूं। तो यीशु मसीह ने क्या किया, लिखा फौरन कपड़े चेंज किए और लिखा है एक बड़े टब में पानी लिया, कमर में पटका बांधा और बारी बारी अपने शागिर्दों के पांव धोने शुरू कर दिए। पहले के पांव धोए, उसे धुलवा लिए, दूसरे के पास आया, तीसरे के बाद आया, चौथे, पांचवें, छठे के बाद जब पतरस के पास आया तो पतरस ने अपने पांव खींच लिए, मैं नहीं धोऊंगा, अब तक तेरे तुझसे पांव नहीं धुलवाऊंगा। तो यीशु मसीह ने कहा पांव धुलवा ले, उसने कहा नहीं धुलवाऊंगा, अब तक नहीं धुलवा सकता, कभी नहीं धुलवाऊंगा। तो यीशु ने कहा अगर तू पांव नहीं धुलवाएगा तो फिर तू हमारे साथ शरीक नहीं है, तो फिर तू हमारे साथ नहीं, तुम्हारा भाई नहीं शरीक। तो उसने कहा अगर ये बात है पांव क्या, तू मुझे पूरा ही नहला दे। तो यीशु मसीह ने कहा जो नहा चुका उसे पांव धोने की जरूरत है। उसे क्या है, नहाने का मतलब है रासबाजी के अंदर आना। यीशु मसीह को कबूल कर लिया आपने तो आप रासबाजी के अंदर आ चुके। तो लिखा अगर कोई गलती खता हुई है पांव धोए जाते हैं। पांव धोने का मतलब ये लिया जाता है कि पांव धोने का अगर कोई गलती खता हुई है तो फिर माफी मांग ले। पतरस को कहा अभी तुझे समझ नहीं आएगी, तू बाद में समझेगा, अभी क्या समझ नहीं आएगी, जब मैं पकड़ा जाऊंगा, जब तू इनकार करेगा तब तुझे समझ आएगी। यानी फिर उसने इनकार भी किया ना, खुदा यीशु मसीह का इनकार कर गया, फिर रो रो कर उसने माफी मांगी, यानी पांव धो लिए उसने। पांव धोने से मुराद है अपने गुनाहों को मान लेना। गुनाह अगर जिंदगी के अंदर है तो माफी मांग कर पांव धोकर आप इस शीरे के अंदर शामिल हो सकते हैं। पांव धोने के बाद आप इस रोटी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब तक अब दुनिया में गुनाह आपकी जिंदगी में आ सकता है तो अगर पहली बात गुनाह नहीं करना चाहिए बार बार। लेकिन जो गुनाह करता है, गर्दन कशी करता है, ना कहां अचानक डेथ हो जाएगी उसकी, अचानक मौत आ जाएगी। तो शैतान को मौका गुनाह करने की जरूरत ही नहीं। अब तो हमारे अंदर ये बात नहीं है, मगर फिर भी कोई गुनाह कर लेता है तो ये आपके पास ऑप्शन है, वक्त है खुदा ने दिया हुआ कि पांव धो लेना। क्या करना, पांव धोकर इसमें शामिल हो जाना। अब नहीं समझ आ रही, पतरस को कहा तब तू समझेगा, बाद में क्या करेगा समझेगा। जब उससे गुनाह हुआ तो उसने पांव धोकर फिर खिदमत का काम किया और फिर लिखा उसने बड़ी मनादी की। हालांकि जब उसने मसीह का इनकार ही कर दिया तो फिर किस बात का वो खादर, मगर लिखा है उसने पांव धो लिए, माफी मांगी। तो पांव धोए जाते हैं, बहुत सारी कलीसियों के अंदर पांव धोए जाते हैं।
मगर यीशु मसीह ने पाँव धोए भाइयों। ये पाँव धोना तो हर बंदा नहीं धो सकता, ये तो यीशु ही धो सकता है, कोई इंसान तो नहीं धो सकता किसी का। फिर भी कोई ऑप्शन दी जाती है कि लोग पाँव धोते हैं, मगर बाइबल के मुताबिक पाँव धोने का मतलब है कि अपने गुनाहों को मानना। अगर कोई गुनाह आ गया जिंदगी के अंदर, अगर कोई गलती खता हो गई है, तो पाँव धोकर भाइयों माफी मांगकर इसमें शरीक हो सकते हैं। ये आपके पास चांस है। यीशु मसीह ने यानी इस्मान पर जाने से पहले, पकड़े जाने से पहले अपने शिगिर्दों को ये ऑप्शन बता दी कि भाइयों पाँव धोले ना करना, तभी तुम बहाल हो सकते, तभी खिदमत के अंदर आगे निकल सकते हो। वरना जो गलतियां खता खादम कर रहे हैं आज दुनिया के अंदर भाइयों, उनकी जिंदगी में खमीर होता है, गुनाह होता है, वो खिदमत में भी लगे होते, बड़े बड़े मौजात हो रहे हैं, मगर चांस है कि वो गुनाह ना करें। और अगर गुनाह करते हैं तो उनकी मौत हो सकती है, बीमारी के अंदर चल जा सकते हैं। मगर गोल्डन चांस ये है कि अगर कोई गलती खता हो गई है तो आप पाँव धो सकते हैं। पाँव धोने से मुराद है माफी मांगना, अपने गुनाहों का इकरार करना। और दूसरी बात ये भी है पाँव धोने से कि दूसरे अपने दुश्मन को माफ करें। अपने दुश्मन को क्या करना, किसी ने आपको दुख दिया हो तभी भी हम भाइयों माफ कर सकते हैं, ये भी पाँव धोने से मुराद है। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि पाँव धोने से मुराद ये लिया जाता है बाइबल के मुताबिक कि अगर कोई गलती खता होगी है तो माफी मांगकर हम क्या कर सकते हैं, इस रोटी और शीरे में शरीक हो सकते हैं, यानी खमीर हम अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है बेखमीरी रोटी के साथ, इसका मतलब गुनाह वाली हालत ना हो, यानी पकीजगी की हालत में, रासबाजी की हालत में मैंने और आपने इसमें शामिल होना। आमीन। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर जो पढ़ा गया हवाला कि यीशु मसीह ने आखिरी फसा जो खाई है उसके अंदर मिस्र वाली फसा को खत्म किया और अपनी फसा को वहां पर स्टार्ट किया, यानी शायरबानी को स्टार्ट किया। यानी शायरबानी जो हम लेते हैं उसके अंदर शरीक होते हैं। इसका मतलब है कि हम मसीह के लहू में शरीक होते हैं, यीशु की मौत को अपने ऊपर लेते हैं। और यीशु मसीह ने जो मौत का मजा लिया है, प्याला पिया है, इसका मतलब है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें शरीक होकर आसमान की बादशाह के लिए तैयार हो रहे हैं। आखिरी बात सुन लीजिए, लास्ट बात सुन लीजिए। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, पौलुस रसूल लिखा है, एक बाला खाना के अंदर उसने मिशनी सफर करना था पहला, यानी उसने मनादी के लिए जाना था। लिखा है कि एक बाला खाने के अंदर ठहरा होता कलाम सुना रहा था, उसने जाना था वहां पर कलाम सुनाने के लिए। लिखा है कि खुदावंद के कलाम लिखा है वहां पर उसने सारी रात ही लगा दी कलाम सुनाने के लिए। लोग बैठे हैं जैसे आप बैठे हो। लिखा है बाला खाना के ऊपर, ऊपरी बिल्डिंग के ऊपर, गैलरी के ऊपर एक शख्स बैठा था, रात के 12-1 का टाइम हो गया। लिखा है कि वो भी कलाम सुन रहा था, सारे कलाम सुन रहे थे। और लिखा उनको पता भी था आज शायरबानी भी है पर उसने देनी है, सारे कलाम सुन रहे। लिखा 1-1:30 का जब टाइम हुआ तो लिखा वो बाला खाना से उसको एकदम एक नीचे गिर गया। इसका मतलब है कि वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। लिखा है ये जो ईद मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी ये रोटी और शीरा, इसकी जो शायरबानी स्टार्ट होनी है, इसकी समझ स्टार्ट होनी है। लिखा है कि वो ऊपर से गिरा। ये तो भैया खुशी की बात है ना, खुशी में इसमें शरीक होना है। जब इसे लेते हैं तो खुदा हमें खुशी बख्शता है, हमें जोर बख्शता है, अपने रूह कुदस की ममूरी से ममूर होते हैं। तो लिखा है शैतान ने उनकी खुशी को क्या किया, बंद कर दिया ताकि ये खुश ना हो। लिखा है बंदा उसे नींद की झपकी आई, लिखा ऊपर से गिरा और उसकी डेथ हो गई। अब सब पर लिखा है डर खौफ छा गया। तब क्या हो गया, सबने इबादत छोड़ दी और उस बंदे की तरफ लग गए। तो अब देखिए शैतान इस तरह की भी हमारी खुशी को बर्बाद करना चाहता है। वो शायरबानी में शामिल नहीं होने देने चाह रहा। वो शैतान हमारी जिंदगियों में क्या करता है, गुनाह लाता है। शैतान हमारी जिंदगी में क्या लाता है, खमीर लाता है कि किसी तरीके से हम क्या हो, इस इबादत में शरीक ना हो, हट जाए, शैतान के चढ़ जाए। और उसने मौका पा लिया, शैतान ने मौका उस बंदे को पकड़ लिया और लिखा ऊपर से वो गिरा, उसकी डेथ हो गई। मगर खुदावंद के कलाम लिखा है वहां पर पौलुस ने क्या किया, लिखा उस पर दुआ की और वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जब पौलुस ने दुआ की, उससे पहले जिंदा किया, यीशु के नाम से उठ खड़ा हो, और लिखा वो जिंदा हो गया। और फिर लिखा दोबारा कलाम को सुनाना शुरू किया। और फिर लिखा जब सुबह 4 बज गए तो लिखा 4 बजे लिखा खुदावंद के कलाम में उसने रोटी को लिया, उसने क्या किया, रोटी ली और फिर उसने शीरा लिया और लिखा दुआ करके उनको क्या करने लगा, देने लगा। और क्या हवाला पढ़ने लगा, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। क्या कहने लगा, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची, मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि यीशु मसीह जिस रात पकड़वाया गया, आज की रात पकड़वाया गया। रोटी ली और शीरा लिया और कहा ये मेरा बदन है, आमीन, ये मेरा खून है नए अहद के अंदर, जब कभी पियो मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। उसकी याद मनाने के लिए हम यहाँ पर ठहरे हैं, ये यादगिरी कर रहे हैं। लिहाजा ये यादगिरी भाई मैंने और आपने सेलिब्रेट करना है। मैंने बताया कि
जो मिस्र वाली ईद मनाई जाती थी वो चौथे महीने की 23 तारीख को मनाई जाती थी। पूरी दुनिया के अंदर इजराइल मनाते थे, इजराइल मनाते थे मिस्र वाली ईद। मैं और आप मिस्र वाली ईद नहीं मना रहे, मैं और आप यीशु मसीह वाली ईद मना रहे हैं। यीशु मसीह ने आज के दिन शहरबानी को जारी किया, यानी अपना बदन खाने को दिया, अपना लहू पीने को दिया। ये ईद हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मिस्र वाली ईद नहीं मना रहे। मिस्र वाली ईद जो मनाई जाती थी वो चौथे महीने की 23 तारीख को मनाई जाती थी। मगर हम तरीकों के चक्कर में न पड़े। खुदावंद के कलाम में पौलुस कहता है, जब कभी तुम ये करते हो मेरी यानी खुदा यीशु मसीह की यादगिरी को मनाते हैं सेलिब्रेट। ये भाई रोज रोज हम मना सकते हैं, रोज रोज इस रोटी में शरीक हो सकते हैं, हफ्ते के बाद शरीक हो सकते हैं, महीने के बाद शरीक हो सकते हैं, साल के अंदर एक दफा शरीक हो सकते हैं। तो ये तो भाई यादगिरी है। लिहाजा हमने जो शुरू किया हुआ है वो महीने के अंदर हम देते हैं। पहले हफ्ते, महीने का जो पहला हफ्ता आता है, हम क्या करते हैं इसमें शरीक होते हैं और इसके बदन के अंदर इस यादगिरी को मनाना है। भाइयों हर रोज भी मना सकते हैं, हफ्ते के बाद भी मना सकते हैं, मगर कलीसियों ने मुकर्रर किया हुआ महीने के अंदर एक दफा मनाई जा सकती है, साल के अंदर भी मनाई जा सकती है। तो ये तो आप पर है कि आप पकीजगी की हालत में, रासबासी की हालत में, रूह का जोर लेने के लिए इसमें शरीक हो, क्योंकि पाक रूह का जोर आपको मिलता है। फिर खुदा आपको पकीजगी में आपको बढ़ने का फजल देता है। तो भाई इससे कोई रद्द ना करे, रिजेक्ट ना करे। ये प्याला हर बंदे के पास से गुजरता है। ये प्याला किसके पास गुजरता है? अब देखिए लिखा जब दिया गया ना तो ये प्याला सबके पास से ऐसे गुजरा है। कैसी बात है? क्राइस्ट ने यहूदा इस्करियोती भी बीच में है, मगर उसके पास से भी गुजरा है, हालांकि वो गुनाह की हालत में है। उसकी जिंदगी में फतीर है, यानी गुनाह है, खबीर पाया जाता है। मसीह को उसने पकड़वाना, तो उसके अंदर चोर था कि मैंने मसीह को पकड़वाना। 30 सिक्कों में मसीह को बेच डाला उसने। अब देखिए 30 सिक्कों में अपने उस्ताद को उसने बेचा। अभी बड़ा खूबसूरत गीत गाया गया। मैं चाहूंगा बेटों ने, क्वायर ने बड़ी अच्छी प्रस्तुत की और इस बात में हम जोरदार तालियां बजाकर। तो लिखा है ये प्याला तो हर बंदे के सामने से गुजरना चाहिए। यहूदा इस्करियोती ने जब उसे दिया गया उसने पी लिया, हालांकि अंदर मसीह को पकड़वाना चाहता था, गुनाह था अंदर। उसने पिया, जब ऐसे पिया तो लिखा शैतान फौरन समा गया। इसका मतलब अगर भाइयों गुनाह वाली जिंदगी के अंदर ये पिएंगे तो फिर गुनाह, फिर शैतान आपकी जिंदगी में आ जाएगा, उसे मौका मिलेगा। लिखा उसने जब रोटी खाई और प्याला शिरा लिया, पहले नहीं था शैतान उसके पास आया, जब उसकी जिंदगी गुनाह वाली जिंदगी थी, खबीर वाली जिंदगी थी, अंदर गुनाह था, मसीह को पकड़वाना था। लिहाजा जब उसने ये पिया है, जब रोटी खाई है, फौरन शैतान उसकी जिंदगी में आ गया, वो भागा फौरन। लिखा है जाकर मसीह को पकड़वाने वालों के पास चला गया। इधर रोटी खाई जा रही है और उधर क्या हो रहा है? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो रोटी खा रहे हैं और जब लिखा है कि वहां पर रोटी खाकर यहूदा साहब निकल गए हैं मसीह को पकड़वाने के लिए, मगर लिखा है जो शिगिर्द थे मसीह के साथ, लिखा है वो गीत गाते हुए गतसमनी बाग के अंदर गए। हालेलुया। ज़बूर 116 और ज़बूर 118 गाया गया वहां पर, यीशु मसीह ने गाया और जितने शिगिर्द हैं। अब तो वहां पर ज़बूर लिखा गीत गाते हुए गतसमनी बाग के अंदर मसीह ने आखिरी दुआ करनी थी और दुनिया का सिन गुनाह जो था भैया आज के दिन मसीह के ऊपर लादा गया। गतसमनी बाग के अंदर जितने मिस्र की आफतें हैं, जितने आदम से लेकर जब तक दुनिया है इंसान पैदा होगा, सबके गुनाह मसीह यीशु ने भाइयों गतसमनी बाग के अंदर आपने पर लिए। लिखा है एक टप्पा भी उससे नहीं चला गया। आप देखिए इस कदर गुनाह था दुनिया का गुनाह। एक टप्पा यानी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा, इतना गुनाह। शैतान जो चाहता था कि उसी रात उसे मार दे, वो चाहता नहीं था कि शरीर पर जाकर यीशु मसीह जो है अपनी जान दे। उसी रात उसी वक्त लिखा है शैतान भाइयों, शैतान की सारी फोर्सेस जितने भाई एक तिहाई फरिश्ते आसमान से गिरा दिए गए हैं, नापाक फरिश्ते, सब वहां पर आए हुए मसीह को मारने के लिए। लिखा है एक टप्पा भी मसीह से नहीं चला जा रहा, इसलिए भागकर शिगिर्दों के पास आया। क्या करने लगा? याकूब यूहन्ना मेरे साथ मिलकर दुआ कर। वो सुत्ते ही रह गए। उन्होंने ठा के क्या गया? ठाना है मेरे साथ मिलकर दुआ कर। नहीं किया शिगिर्दार ने, फिर अकेला ही जाकर लिखा दुआ करने लगा। लिखा पसीना खून बांधकर टपकने लगा। इस कदर नज़ीयत थी, इस कदर दुनिया का गुनाह मसीह के ऊपर था। लिखा पसीना जो था खून की बूंदे होकर टपकने लगा। मैंने बताया पूरी दुनिया का गुनाह भाई गतसमनी बाग के अंदर। इसलिए तो यीशु मसीह का हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं मर्जी बल्कि तेरी मर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो यीशु मसीह दुख नहीं लेना चाहते थे,
इसका मतलब है मैं मेरी मौत यहाँ पर ना आए, गत्समनी बाग में नहीं, मैंने क्रॉस के ऊपर अपनी जान देनी है, क्रॉस के ऊपर, मेरी डेथ क्रॉस के ऊपर हो। हालेलुया। लेकिन मसीह यही दुआ कर रहा था बार बार कि ये प्याला मुझसे क्या हो, टल जाए, मतलब ये घड़ी मुझसे टल जाए। लेकिन पूरी फोर्सेस आई हुई, शैतान की कुत्ते आई हुई है, मसीह को मार देना चाहती है वहां पर। मगर खुदावंद के कलाम में लिखा है मसीह दुआ करता, शिगिर्द आते तो जरा जल्दी ये जंग लड़ी जाती है। फोर्सेस है, शैतानी कुत्ते आई हुई हैं, उनके साथ फाइट हो रही है, रूहानी जंग हो रही है। तो ये दुआ के जरिए से होगी ना, जिस्म के साथ तो नहीं होती, दुआ के जरिए से। मगर लिखा शिगिर्द उनकी आंखों में नींद भरी थी, उन्होंने पता नहीं चला कि हो रहा है। जब तीसरी बार दुआ की कहा फिर अब सोते ही रहो, अब पकड़वाने वाला मेरा पास है, पकड़वाने वाला आ गया, अब सो जाओ, अब क्या हो सकता है। मगर जंग लड़ी है। खुदावंद के कलाम लिखा है ये जंग मसीह ने अकेले ने तनतहा होकर लड़ी है, और ये जंग यीशु मसीह ने जीती है। हालेलुया, हालेलुया। ये जंग जीती अकेले ने, फोर्सेस थी, अकेले ने, लिखा जंग जीती है। और लिखा है उसकी दुआ को सुन लिया गया, और लिखा एक फरिश्ता आकर उसे तकवीत देने लगा। उसे क्या करने लगा? तकवीत का मतलब है नहीं कि उनको टलना पे, नो 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 नो, तकवीत का मतलब है कि वो भाइयों फोर्सेस के साथ हो गया, यानी उससे मसीह ने अकेले ने जंग लड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया का गुनाह था, इसलिए खुदा की वो फोर्सेस, खुदा के फरिश्ते पास खड़े थे, वो नहीं काम कर सकते थे, क्योंकि गुनाह वाली जिंदगी होगी तो उसके अंदर पाक फरिश्ते नहीं आ सकेंगे। अब देखिए यीशु मसीह गुनाह, और यीशु मसीह का अपना गुनाह नहीं था, ये दुनिया का गुनाह था, मेरा और आपका गुनाह था। मैंने बताया फरिश्ते वो पास खड़े हैं, पाक फरिश्ते, नापाक फरिश्तों की कुत्ते उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो पाक फरिश्ते उसकी मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि गुनाह यीशु मसीह ने के ऊपर था। मगर यहाँ पर लिखा यीशु मसीह ने तन तरह अकेले ने लिखा है फोर्सेस का मुकाबला किया, और ये जंग भैया जीती है। हालेलुया। और लिखा है फरिश्ते आकर फिर आए हैं, जब जीत गया यीशु मसीह ने जंग लड़ी है दुआ के जरिए से, तो फिर लिखा है कि फिर उसने जाकर क्या किया, फरिश्ते आकर तकवीत करने लगे। फरिश्ते ने कहा हाँ भी नापाक फरिश्ते हो, पीछे हो जाओ। फिर सलीब के ऊपर यीशु मसीह ने दुख सहने के लिए लिखा है क्रॉस उठाकर लिखा है गत्समनी बाग के वहां पर खोपड़ी की जगह पर गया। हालेलुया। पूरा प्रोसेस किया। फिर शैतान, मैंने बताया गत्समनी के अंदर मार देना चाहता था, मगर यीशु मसीह ने बार बार लिखा एक टप्पा भी नहीं चला जाता था, मगर उसने जंग लड़ी है। इस तरह मुझे और आपने क्या करनी है, जंग लड़नी है भाइयों। गुनाह वाली जिंदगी ना हो, नापाकी वाली जिंदगी ना हो, हमारी जिंदगी में खमीर ना पाया जाए, बेखमीरी रोटी के साथ पाकीज़गी की हालत में ये जंग भाइयों लड़ी जाती है। पाकीज़गी की हालत में ये जंग लड़ी जाती है। हमें दुआ करनी है, हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। यीशु मसीह ने यही तो सिखाया, बार बार कहा मेरे साथ मिलकर दुआ करो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम दुआ करते ही नहीं ताकि आजमाइश छिप ही रही, सारी जिंदगी दुआ करते ही नहीं। बड़े बड़े खादम देखते हैं दुआ ही नहीं करते, कलाम नहीं पढ़ते, कलाम पढ़ते नहीं, घरों में पड़ा हुआ खाली, हर घर के अंदर कलाम बाइबल पढ़ी है, वो ऊपर ही रखी हुई है, मगर कोई पढ़ता ही नहीं है। मट्टी इतनी किसी घर में जाए, अब देखिए ऐसी हालत होगी, कंडीशन होगी कि लोग इसको कहते हैं ये पढ़े बाइबल ना तो हमें बोरियत हासिल होती है। बोरियत का मतलब अब देखिए इंसान की सोचे किस कदर, ऐसी ऐसी फैमिलियां उससे कहते कलाम पढ़ो, उनको पढ़ना नहीं आता, कलाम हवाला नहीं निकालना आता। आज हमारी यूथ जो है, यंग लोग जो है, उनको हवाला कहना, हवाला नहीं निकालना आता, किताब का नहीं पता, पुराना है नामा का किधर है, नया नामा, ये हालत है हमारे लोगों की। तो कहने का मकसद है भाइयों ये कलाम से मोहब्बत करें, फाइट कलाम के जरिए से करेंगे, शैतान के साथ दुआ के जरिए से करेंगे, दुआ करेंगे तभी शैतान के साथ शैतानी कुत्ते भागेंगे। मैंने यीशु मसीह ने बार बार कहा मेरे साथ दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो हम दुआ करते नहीं ताकि आजमाइशें जी पड़े रही। तो ये खुदावंद ने हमें चांस दिया है, वक्त दिया है, जिंदगी दी है, ताकि हम शायरबानी को लेकर उसके लहू में शामिल होकर, उसके बदल में शामिल होकर क्या करें, दुनिया के अंदर इब्लीस के साथ जंग लड़ सके। वही लड़ सकेगा जो पाकीज़गी की हालत में इसमें शरीक होगा। नापाक शख्स इसमें शामिल ना हो, नापाक शख्स को निकाल देना चाहिए। ठीक है, पौलुस ने निकाला उस शख्स को जिसने अपने बाप की बीवी को अपने पास रखा हुआ था, ऐसे शख्स को आउट किया। और आज भी अगर कोई नापाकी की हालत में आता है भाइयों, वो हम नहीं कहते, वो खुद ही निकल जाते हैं। जो आते नहीं नजर आते चर्च में, खुदा खुद ही उन्होंने काट देता। आज के दौर से तो खुदा खुद ही उन्होंने आउट कर दिया। असि कहने चर्च नहीं आते, वो भाई खुदा ने इनको निकाल दिया नापाक लोगों, वो अपने ठहर नहीं सकता। नापाक लोग पाक लोगों के साथ नहीं ठहरते। बड़े बड़े लीडर हमारे साथ देखेंगे, मगर जब वो आउट ही नजर आएंगे, क्योंकि जब गुनाह आएगा, सिन आएगा, वो कलीसिया में ठहर नहीं सकते। नापाक लोगों को खुदा उगल देता है, आउट कर देता है। जैसा पाकीज़गी की हालत में इसके अंदर शामिल होता है। आमीन।
आइए अपने सर को झुकाएंगे, बंद करेंगे, दुआ करेंगे, आंखें बंद कीजिए। मैं चाहूंगा कि आइए सब खड़े हो जाए।